So how's it going? First of all, congratulations. So you all scored really well in your C1 component. And like I mentioned, the class average was 7. So that's pretty good. And we have 4 toppers like 10 on 10. Who are they? Shrishti, Kunal, and I'm just forgetting their name. किसके आए थे 10? I'm Rakshanda. Rakshanda. Shubhi. And Bharat. Right? Congratulations, guys. Shubhi also. And Shubhi, yes. Yes, congrats, guys. So even students who have performed like 9, 10 is similar, and then 8, 7, it's all like very good. So I have this feeling now कि अब तुम्हें cluster analysis, segmentation के concepts काफी clear है. And I want to hear it from you. What do you think? After giving the exam, after giving the self-assessment quiz, what do you think? मैम जो टेस्ट में आंसर्स थे वो काफी मतलब मेरे आंसर से मैच नहीं कर रहे थे. डिफरेंट आंसर्स आ रहे थे मेरे. मैम काफी हद तक थिंग्स आर क्लियर मैम, बट एक वो जो था ना कॉन्फिडेंस कि मतलब कुछ भी आ जाए कर देंगे मैम, वो चीज नहीं बिल्ड अप हो पा रही है. ओके, तो उसके लिए 2 चीजें हैं. आई कैन गिव यू मोर डेटा सेट्स एंड आई कैन गिव यू असाइनमेंट ऑन दैट. सेकेंड थिंग इज जो तुम्हारा ग्रुप प्रोजेक्ट है, ओके, जब तुम वो ग्रुप प्रोजेक्ट करोगे, खुद डेटा कलेक्ट करोगे, खुद वो ग्रुप प्रोजेक्ट करोगे एंड यू विल चेक कि क्या वैल्यूज आ रही है और उसे तुम एनालाइज करोगे, देन दैट विल गिव यू मोर कॉन्फिडेंस. ओके, एंड एट दैट टाइम व्हेन यू विल प्रिपेयर योर क्वेश्चनर, you will understand कि ये कौन सा टाइप का segmentation है, and you know all the missing things you will be able to understand when you will do your group project. And second thing is like I'll give you more data sets so that you can run cluster analysis on it, तो वो confidence आ जाएगा. Other than that, was it easy? मैम वो जो आपने वीडियोस प्रोवाइड करी थी YouTube वाली, it was pretty helpful. Like introduction about R is basic things about R is clear now. Okay, so जो R tutorial वाली वीडियो थी, yes 2 ma'am, hours. yes, okay, 2 hours वाली, yes ma'am. So who all have gone through that video? Please raise your hand. The 2 hours वाली video. हाँ, yeah, Shikha, you were saying something. मैम उससे रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी थे मैम, तो अगर आपको जब टाइम हो तो प्लीज लेट अस नो. आई विल लेट मी नो. आई विल आस्क माय क्वेश्चंस. So you can post those questions on group. Whatever questions you have, you can post those questions on group. And मैम अपार्ट फ्रॉम दैट वो तो केवल इंट्रोडक्शन था, उसमें कुछ ज्यादा है ही नहीं, उसमें खाली बेसिक्स क्लियर करे गए हैं. एग्जैक्टली. उससे आगे जैसे हम लोगों ने जो डेटा सेट्स करे, हमने जो हिस्टोरिकल हायरार्किकल क्लस्टरिंग करी है, वो उसके लिए भी कोई अगर वीडियोस हो तो प्लीज सजेस्ट अस. हाँ, देयर आर सो मेनी वीडियोस हायरार्किकल क्लस्टरिंग के लिए. इनफैक्ट मैंने स्टैट क्वेस्ट की कुछ वीडियोस भी भेजी थी तुम्हें. ठीक है, आई शेयर दैट. I'll share that. Thank you. Okay. Okay. So today we have to discuss regression. Okay. But before discussing regression, I did some data analysis on your C1 wala component. Okay. So जो तुम्हारा क्विज था C1 का, I extracted that data from QuickForce. Okay. Basically, your surname, first name, your ID number, कुछ एक ये इस टाइप की Excel आ जाती है. Let me name this. I've named it as C1 marks. Okay. And I can view this by double clicking it.
क्या नेम है, क्या सर नेम है, क्या तुम्हारा एनरोलमेंट नंबर है, एंड व्हाट इज योर ईमेल एड्रेस, एंड तुम्हारे टाइम, कब तुमने स्टार्ट किया था क्विज, कब तुमने फिनिश किया, कितना टाइम तुम्हें लगा, grade 10, you can also sort it here. Total grades कितने आए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, हर एक क्वेश्चन में तुमने करेक्ट आंसर दिया या नहीं. आई गॉट दिस काइंड ऑफ स्प्रेडशीट. ओके, इसे एनालाइज करें. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, it's going to be a very like fun exercise. So what I did is I calculated mean. और mean मैंने कौन सा कॉलम लिया, grade 10, जिसमें I ran this and then this. So I got 6.9 class का average था. Okay. Then I decided कि थोड़ा explore करते हैं, and I use the summary function. So summary function से ये क्या आया कि सरनेम शर्मा, 6 students का surname is Sharma, 5 students का surname is Gupta, and this kind of summary. And first name Abhishek, 3 लोगों के नाम है, Ayush 3, Prateek 3, Aditya 2, and so on. And then there is ID number which is unique for everyone, their email address, and all the details which are in this minimum and maximum grade. Minimum is 3 and maximum grade is 10. Time taken and all the questions. Okay. After that, I check what is the class of time taken. So this is character. So जो भी inverted commas में होता है, that is character or text. Okay. Do you understand what is character? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. तो मैंने इसे न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर दिया. जैसे सेगमेंटेशन में हमने एज डॉट मैट्रिक्स करा था, यहाँ पर एज डॉट न्यूमेरिक करके मैंने इसे न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर दिया. So in this session I'll tell you 2-3 functions of dplyr. ये dplyr package क्या होता है, what are these functions, and I'll analyze this data set using this dplyr. तो पैकेज मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ था, मैंने ये लोड किया, सिर्फ लाइब्रेरी रन करी मैंने, एंड I can select the desired columns by just selecting this. Select जो भी columns मुझे चाहिए, I have kept it in this bracket. Okay. और यहाँ पर मुझे डेटा का नेम देना है. I have named it as C1 marks. Okay. और मैंने सिर्फ ये कॉलम सेलेक्ट किए, फर्स्ट नेम, टाइम टेकन एंड ग्रेड. इट्स लाइक सुपर इजी. और मुझे ये सिर्फ ये 3 कॉलम्स आ गए. ओके. नाउ आई वांट टू नो वो कौन से बच्चे थे जिन्होंने स्कोर किया ग्रेटर देन 8. दैट इज दे स्कोर्ड 9 और 10. So I can put this kind of condition. Okay, कि जो grade dot 10 ये जो मेरा कॉलम है, इसे greater than 8 values मुझे शो करें. So these are the students who scored 9 or 10. Okay, 1 to 10 of 22 rows. So basically 22 students. Then I checked वो कौन से students हैं जिनका नाम first name is Abhishek. So I gave this condition. First name is equal to Abhishek. Okay. किसी ने पूछा भी था WhatsApp group पे कि what is equal and what is this double equal. So double equal means actual equal to, and what is equal? Equal is assignment. जैसे हम assignment operator में use करते हैं ना, less and this.
तो ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, अगर हम सिर्फ इक्वल रखें तो हम इसकी जगह ये इक्वल भी लिख सकते हैं. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वल एंड डबल इक्वल टू. सो आई चेक्ड कि वो कौन स्टूडेंट्स हैं जिनका फर्स्ट नेम अभिषेक है, एंड आई यूज्ड फिल्टर फॉर दिस. तो 3 ऐसे लोग हैं जिनका नाम अभिषेक है. अभिषेक पटेल, अभिषेक त्यागी, अभिषेक कांधारी. ओके, राइट. अभिषेक पटेल, त्यागी, कांधारी, आर यू प्रेजेंट हियर? Yes, ma'am. Okay. Then I checked first name is Prateek. किन लोगों के फर्स्ट नेम प्रतीक हैं बताओ, before I run this. प्रतीक शर्मा, प्रतीक वाग्मी. Prateek Singh also, ma'am. Okay, so let's see. So this some error in this. मैम ये प्रतीक नाम ही एरर है. Okay. ज्यादा बोल रहा है ये. प्रतीक में. So प्रतीक शर्मा, वाग्मी, सिंह. ओके, अब मुझे देखना था कि मैम अगर इनके मार्क्स देखने हो तो हाँ उनके मार्क्स भी देखते हैं. सारे प्रतीक कलेक्ट बताओ मैम, बताओ मार्क्स बताओ. फर्स्ट नेम प्रतीक था और ग्रेड जिनके ग्रेटर देन 7 आए हैं. ओके, ओके, तीनों के ग्रेड 7 से ज्यादा आए हैं. देखते हैं इनके मार्क्स कितने हैं. ओके, 899. वाओ प्रतीक शर्मा, वाओ. वाओ. कमाल है भाई प्रतीक. ओके, प्रतीक सिंह के भी 9 आए हैं फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन. बड़ा है ना वो हमसे. ओके, सो सिमिलरली आई चेक कि किनका सरनेम गुप्ता है और उनमें से कितने लोगों ने जिनका 7 से ज्यादा आए थे मार्क्स. सो आशीष गुप्ता, अमीशा गुप्ता, कार्तिकेय गुप्ता एंड आकाश गुप्ता. सब प्रेजेंट है. आशीष, अमीशा, कार्तिकेय. ओके, मार्क्स देखते हैं इनके 8899, सबके 7 से ज्यादा. ओके, एंड एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज सामने आई. आई चेक्ड कि 7 से ज्यादा जिसके मार्क्स है और टाइम भी उन्होंने कम लिया, like less than 21 minutes. So there are like 9 people. Hello. मैम एक डाउट है, जैसे इसमें ऑपोजिट चलता है, जैसे लेस देन 21 मिनट्स है तो उसमें हम लोगों ने ग्रेटर का साइन लगाया हुआ है जब आपने फंक्शन रन करा है. नहीं, टाइम टेकन इज लेस देन 21. टाइम टेकन इज लेस देन 21. ग्रेड इज ग्रेटर देन 7. ओके. टाइम टेकन 21 से कम, 21 मिनट से कम जिन लोगों ने लिया और उनका ग्रेड 8, 9 या 10 आया था. तो ऐसे 9 लोग हैं. आशीष गुप्ता, कुणाल, अंशुल, मानिक, आदित्य, संयम. मैम जिसने सबसे पहले करा है मैम उसका. हाँ, वो तुम्हें चेक करना है. सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि किस किस टाइप से तुम ये एनालिसिस कर सकते हो. इसमें बहुत कुछ चेक करने के लिए. सो लाइक यू सेड कि किसने सबसे पहले खत्म किया. बट देयर इज वन इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई वांट टू शो यू, जो इस डेटा ने मुझे बताया कि टाइम टेकन लेस देन 21 मिनट्स. 20 क्वेश्चन थे. 20 मिनट्स इज लाइक गुड टाइम. 20 मिनट में कर सकते थे. और ये 5 लोग हैं जिनका ग्रेड 8 से ज्यादा था, बेसिकली 9 and 10. सॉरी, ओके, इनका ग्रेड 9 या 10 था और इन्होंने 21 मिनट से कम टाइम लिया था. एंड देन आई चेक वो कौन लोग थे जिन्होंने स्कोर किया 10 और सबसे कम टाइम लिया, एंड दैट इज कुणाल आहूजा. सो वेरी गुड कुणाल. Then there is this condition I can put. For example, surname is Gupta or first name is Prateek. कितने लोग आने चाहिए इसमें? कौन कौन आ सकता है? Surname is Gupta or first name is Prateek.
नहीं एक बट ही लोग नहीं बट इट्स और कंडीशन एंड कंडीशन नहीं अच्छा है। तो सारे जितनों के सरनेम गुप्ता होंगे और वो आएंगे, और जिनका नाम प्रतीक होगा फर्स्ट में वो आएंगे। वो सब जिनका आएंगे। फर्स्ट नेम प्रतीक शर्मा प्रतीक भी होगा आएगा और मैम। जिनका सरनेम गुप्ता होगा। हाँ, so Ashish, Ayush, sab Gupta and Guptas and Pratik. Okay, so this was a kind of analysis that you can do, and I'll share this RMD file also with you. You can check arrange function से क्या करते हैं, mutate से क्या करते हैं, summarize से क्या करते हैं. You can do all kind of analysis here. अगर तुम्हें एक नया column introduce करना है, तुम्हें summarize करना है result, all that you can do, and you can create histograms also. Okay, something like this. Okay. So that was all on this dplyr and using some of the functions of dplyr. मैम इस हिस्टोग्राम में फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मतलब टाइम टेकन? नहीं, frequency is just a minute. Frequency is count. कितने बच्चे थे? 9 से 10 9 से 10 जिसका स्कोर था वो 4 थे. Okay, so that's count. Okay, so you can do this. Next, मैम अगर लिस्ट में किसी का नाम प्रतीक गुप्ता होता तो वो एक ही कंसीडर करता ना फिर तब भी? सॉरी, अगर लिस्ट में किसी का नाम प्रतीक हाँ प्रतीक से जितना होता उतने आते उसमें, प्रतीक शर्मा, प्रतीक वेदर, मतलब कोई भी कास्ट होता वो उसमें आता। जैसे अपन ने 75 नंबर वाला फिल्टर लगाया है जिसमें सरनेम गुप्ता और फर्स्ट नेम प्रतीक रखा है, तो अगर प्रतीक गुप्ता नाम होता किसी का तो वो एक ही कंसीडर होता है या फिर? अगर प्रतीक गुप्ता भी है, मैंने यहाँ पर और की कंडीशन लगाई है. अगर मैं एंड की कंडीशन लगाती तो सिर्फ प्रतीक गुप्ता का नाम आता. ओके ओके, यहाँ पे मैंने और की कंडीशन लगाई है. सो गुप्ता जिसका सरनेम है वो सब भी आएंगे और प्रतीक जिसका फर्स्ट नेम है वो भी आएंगे. ठीक है, तो प्रतीक गुप्ता भी तो आएगा मैम इसमें अगर लिस्ट वो में भी आएगा, मतलब मैच है वो भी और आएगा कंडीशन में. हाँ, हमारी क्लास में कोई प्रतीक गुप्ता है नहीं. हाँ, बट अगर प्रतीक गुप्ता होता तो हाँ, क्योंकि वो दोनों कंडीशन मेट कर रहा है. गुप्ता भी है सरनेम और प्रतीक फर्स्ट नेम जो है. ओके ओके, सो कोई और कंफ्यूजन इसमें? एंड यू कैन एनालाइज इट, मे बी क्रिएट वन एक्स्ट्रा कॉलम एंड नेम की जिनके 9 आए हैं नेम, those people aggregate भी लगा सकते हो. Time taken, by time taken you can actually do some calculation, you can analyze. It's like up to you, what do you want to find. Okay, anything else on this? Anything, any confusion regarding this? It's quite simple. Filter, and we have used like filter or select function इसमें. You can check arrange function, mutate, summarize, all these. Okay, I'll share one video on dplyr functions. मैम ऐसा फिल्टर लगा सकते हैं क्या कि अपन जिसने सबसे ज्यादा टाइम टेकन लिया मैक्सिमम और जिसके सबसे कम मार्क्स आए हो? हाँ, ये भी कर सकते हैं. तो क्या उसका मैक्सिमम मिनिमम फिल्टर लगता है मैम, क्या लगता है? Yeah, you can, like I said, you can check that video. कौन सी चीजें conditions तुम लगा सकते हो, you can try all that. So जो भी और ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं एंड नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, जैसे ये मैंने ग्रेटर देन का लगाया साइन, यू कैन डू दैट. ओके ओके, सो मैम आपने बताया कि इन्वर्टेड कॉमर्स से हम कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वी हैव पुट द इन्वर्टेड कॉमर्स इन गुप्ता एंड प्रतीक, राइट? यस मैम, जो कॉलम की नेम है उसमें हम नहीं लगा रहे हैं, जैसे टाइम टेकन, ग्रेड 10, सीजन मार्क्स, इसमें नहीं लगा रहे हैं क्योंकि अभिषेक, प्रतीक, ये सब टेक्स्ट है, ये सब कैरेक्टर है. मैम जो हम कॉलम नेम यूज कर रहे हैं टाइम टेकन, उसमें नहीं यूज होना चाहिए. वेरिएबल की बात कर रही है मैम, वेरिएबल्स में. टाइम टेकन तो न्यूमेरिकल वेरिएबल है. टाइम टेकन मैंने न्यूमेरिक कर दिया था. ठीक है मैम, टाइम टेकन मैंने न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर दिया था. ओके, तो अब रिग्रेशन करते हैं. ओके, लेट मी स्टॉप शेयरिंग दिस स्क्रीन.
Oh my. So we'll discuss about linear and multiple regression today. So the first thing is the concept. So linear regression is a machine learning algorithm, but it has a huge role to play in statistics. तो हमने classification हम करेंगे, that is logistic regression, where you classify. Clustering हमने कर ली है, and this is regression. So in regression, the output is continuous variable. Whereas in classification, it's a categorical variable. Basically, जब हम logistic regression करेंगे कि whether a customer, हम predict करेंगे whether a customer will buy or not buy, or whether a customer is credit card defaulter or not. Okay, these kinds of 1, 0 or 1 condition, that is categorical variable जो output में होता है, that are like kind of a classification problem. And in regression, we'll do the output will be a continuous variable. And we'll see what is supervised learning, unsupervised learning. Regression or classification fall under supervised learning. Okay. Whereas जो clustering हमने की, that falls under unsupervised learning. Do you understand what is supervised learning? What is unsupervised learning? No, ma'am. Okay. I'll tell you about that also. First, regression is a form of predictive modeling technique. हम predict करते हैं. Okay. Here we try to find a significant relationship between a dependent variable and one or more independent variable. We'll cover linear and logistic regression, but there are different regression techniques also. Polynomial, ridge, lasso, softmax. वो सब हम cover नहीं करेंगे. Okay. So, what is supervised and unsupervised learning? तो सुपरवाइज लर्निंग में क्या करते हैं, यू ट्रेन द मशीन यूजिंग डेटा. ओके, हम डेटा को पहले ट्रेन करते हैं, हम एक मॉडल डेवलप करते हैं और हमारा टेस्ट डेटा सेट पे उस मॉडल को रन करते हैं टू प्रेडिक्ट. दिस इज व्हाट वी डू इन सुपरवाइज लर्निंग. मैम जैसे रोबोट्स होते हैं. हाँ, आई एम लाइक रोबोट्स. एग्जैक्टली. यू नो, ये मशीन लर्निंग एल्गोरिथम हम मशीन को सिखा देते हैं. इट्स लाइक मशीन लर्न्स. हम एक मॉडल देते हैं, मशीन को वो मॉडल सिखा देते हैं. अब हम कोई भी वैल्यूज उस पे पुट करें, मशीन का काम होता है वो प्रेडिक्ट करके हमें आंसर बता. ओके, एज सिंपल एज दैट. सो व्हाट इज रिग्रेशन? व्हाट इज रिग्रेशन? टेल मी, व्हाट इज रिग्रेशन? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? क्या होता है ये रिग्रेशन? Yeah, quickly. It helps us to predict things or results. Sorry, what? That helps us to predict results. It helps us to predict result. Okay, helps us to predict. So what kind of results? What do we need to input? Independency between relationship between two or more variables. It shows the relationship between dependent and independent variables. Independent variables, right? And it shows that how much, like ma'am, we can take the example of advertisement on the sales, increasing of sales, where the advertisement would be the independent variable and sales will be the dependent variable on advertisement. अगर हम सेल्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो सेल्स विल बी डिपेंडेंट वेरिएबल. यस मैम. और अगर एडवर्टाइजमेंट प्रेडिक्ट करना हो तो मैम एडवर्टाइजमेंट डिपेंडेंट. एडवर्टाइजमेंट मैम डिपेंडेंट वेरिएबल. अगर एडवर्टाइजमेंट प्रेडिक्ट करना हो तो मैम इट विल डिपेंड ऑन द कंज्यूमर बिहेवियर. तो उसमें मैम कंज्यूमर बिहेवियर वो हो जाएगा, सेल्स से कोई रिलेशन नहीं होगा. Independent variable होगा advertisement. Okay, we'll see about it. ठीक है. You told me कि कुछ relationship between dependent and independent variable. Give me this example of advertisement and sales. कुछ predict भी करते हैं. Okay. So let's find out what is this. When you think of regression, you think prediction, right?
And a regression uses a historical relationship between an independent and a dependent variable to predict the future values of the dependent variable. तो डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा वो है जिसकी हमें प्रेडिक्ट करना है फ्यूचर वैल्यूज. ओके, और जब मैंने बोला ये रिलेशनशिप, हिस्टोरिकल रिलेशनशिप, बेसिकली इट्स अ पास्ट डेटा. डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो पास्ट का डेटा है हम वो यूज करते हैं टू प्रेडिक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल की फ्यूचर वैल्यूज. ये चीज समझ में आई? मैम एक बार फिर बता दो ना. यस मैम. कि हम रिग्रेशन एक वो मॉडल होता है जो पास्ट का रिलेशनशिप, पास्ट की रिलेशनशिप, फॉर एग्जांपल इतना एडवर्टीजमेंट था और इतनी सेल्स हुई, ये पास्ट की इन दोनों के रिलेशनशिप से सेल्स जो कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है इसकी फ्यूचर वैल्यूज बता सकता है. दिस इज व्हाट रिग्रेशन डज. ठीक है? यस मैम. So what is independent and what is dependent variable? What is historical relationship? Ma'am, so it only tells the future value of dependent variable. Always. It tells future value. It can predict future value of dependent variable. No, I am asking that it always tells the future value of dependent or independent, both. It always tells future value of your dependent variable. Dependent variable. Okay. Okay. तो what is independent, what is dependent variable? ये historical relationship क्या है? What do we predict? क्या predict करते हैं हम? Independent variable या dependent variable? Dependent. Dependent variable. Okay. So a regression models a past relationship between variables to predict their future behavior, जो हमने अभी बताया. And let's imagine that your company wants to understand, क्लासिक एग्जाम्पल जैसे वही एडवर्टीजमेंट और सेल्स का, हाउ पास्ट एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर्स हैव रिलेटेड टू सेल्स इन ऑर्डर टू मेक फ्यूचर डिसीजंस अबाउट एडवर्टाइजिंग. ओके, पास्ट में एडवर्टीजमेंट पे कितना स्पेंड किया और कितनी सेल्स आई. फॉर एग्जांपल जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे हर एक महीने का फॉर एग्जांपल तुमने किया और तुम्हारे पास कुछ नंबर्स थे, इतने एडवर्टीजमेंट में मैंने स्पेंड किया, इतनी मेरी सेल्स आई, एक्स वाई वॉट एवर द नंबर इज. ओके, और फिर अगर तुम्हारे पास ही से दिसंबर तक का डेटा है और तुम्हें, दिस इज फॉर जनवरी 2019, लास्ट ईयर का जनवरी से दिसंबर तक का डेटा है एडवर्टीजमेंट का, स्पेंडिंग का भी और सेल्स का भी. और अगर मैं फिर पूछूं कि जनवरी 2020 का क्या तुम सेल्स का डेटा प्रेडिक्ट कर सकते हो? कैन यू डू दैट? यस मैम. You can do that. Okay, it's like asking the question, how much sales I can generate next year if I spend 7.5 advertising dollars here. तो मैं सेल्स का डेटा अपना कैलकुलेट कर सकता हूँ. ओके, सो मेन पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रिलेशनशिप, पास्ट का जो डेटा है उसके बेसिस पे हम एक मॉडल बिल्ड करते हैं और उस मॉडल को बिल्ड करके हम प्रेडिक्ट करते हैं फ्यूचर की वैल्यूज डिपेंडेंट वेरिएबल की. ओके, so dependent variable is what you have to calculate or predict. Here we are trying to predict future sales, तो dependent variable इस केस में हमारा सेल्स है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिससे हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं इज एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर्स. ओके, अच्छा, अब हमें अगर प्रेडिक्ट करना है this question, how much sales I can generate next year if I spend 7.5 advertising dollars on advertisement, कैसे करेंगे? मैम इसके लिए हमारे पास इसका सेल्स एक का भी तो formula डेटा होता होना है. चाहिए. क्या? हाँ. सॉरी मैम इसके लिए हमारे पास सेल्स का भी तो डेटा होना चाहिए प्रीवियस ईयर का. सेल्स का कौन सा डेटा होना चाहिए? सेल्स का डेटा, हाँ मैम अगर यहाँ पे एडवर्टीजमेंट क्या कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और सेल्स डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये हुआ कि एडवर्टीजमेंट से हमको कितनी सेल मिली है. अगर हमारी ये वाला डेटा अगर हमारे पास होगा तो हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे नेक्स्ट ईयर अगर हम लोग इतना इन्वेस्ट करें 7 पॉइंट समथिंग डॉलर, तो हाउ मच सेल, मिनिमम सेल वी कैन अचीव एक्चुअली.
मैम और इसमें एवरेज सेल। रिग्रेशन इक्वेशन मैम हाँ मैम एग्जैक्टली बेसिक रिग्रेशन Regression equation y equals to ax plus by. y प्लस mx प्लस c या फिर y इक्वल्स टू एंड मैम हमें ax डेटा plus b. जिस टाइम पे एडवर्टाइजमेंट कैंपेन होगा उस टाइम का सेल्स डेटा चाहिए होगा पास्ट। जिस टाइम पे एडवर्टीजमेंट कैंपेन होगा उस टाइम का डेटा विल कम ऑन दैट बट माय क्वेश्चन इज कि अगर आपको ये कैलकुलेट करना हो हाउ मच सेल्स आई कैन जनरेट नेक्स्ट ईयर इफ आई स्पेंड these many dollars on advertisement तो क्या क्या चाहिए और कैसे निकालोगे? somebody said रिग्रेशन यस मैम इक्वेशन सेल्स डेटा और रिग्रेशन। और सेल्स डेटा और एडवर्टीजमेंट डेटा कौन सा होना चाहिए हमारे पास? मैम वही मैंने बताया ना कि जैसे जो अगर हम लोगों को सेल्स जो हमारी एडवर्टीजमेंट से हुई है कुछ % ऑफ सेल एडवर्टीजमेंट से होगी वो वाला डेटा हमको चाहिए होगा प्रेडिक्ट करने के लिए कि हमारा फ्यूचर में कितना सेल हो सकती है। तो बेसिकली नेक्स्ट ईयर का अगर हमें प्रेडिक्ट करना है तो हमारा इस ईयर का करंट ईयर का या फिर करंट ईयर प्रेडिक्ट करंट और पास्ट ईयर। ठीक है बेसिकली हिस्टोरिकल रिलेशनशिप करने के लिए वी नीड द सेल्स एंड एडवर्टीजमेंट डेटा सो दैट आई कैन अराइव दैट ऑन दैट रिग्रेशन इक्वेशन करेक्ट। और उस रिग्रेशन इक्वेशन में फिर क्या करेंगे हम वी कैन इनपुट दिस नंबर जो हमारे एडवर्टाइजिंग डॉलर्स है ओके ये इक्वेशन आती है ना y इक्वल्स टू mx प्लस c राइट। हमें y बेसिकली क्या निकालना है हमारा सेल्स निकालना है ओके और हमारे पास अगर ये इक्वेशन की सारी वैल्यूज होंगी बेसिकली m x प्लस c बेसिकली m और c तो हमारा वो रिग्रेशन इक्वेशन से पता चल जाएगा और x इज जो हमें ये इनपुट दे दिया है 7.5 इस पे पुट करेंगे तो हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं राइट। यस मैम। So how much sales I can generate next year if I spend $7.5 on advertisement? I can do this by creating a regression equation of past year's sales and advertisement data, which is historical relationship. Or फिर whatever that is $7.5 I have mentioned it lakhs. Basically 7.5 advertising dollars हम put करेंगे and then we can calculate value of y. So next question is how does regression work to enable this prediction? कैसे predict करता है? क्या समझ में आ रहा है इससे? और if you have any thoughts, how does regression work to enable prediction? कैसे predict करता है? मैम पास्ट का डेटा को लेके फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है। Okay. मैम एवरेज में भी शायद निकालता हो कि अगर कंटिन्यूसली पास के 1 या 2 साल में इतना सेल हुई है तो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर में इतनी हो। Very good point, but this is not what regression does. But बहुत important point है कि average शायद निकालता हो, याद रखना ये point. Okay, next. Okay. comparison between the जैसे variables. y और x dependent और independent variable है तो मैम this equation also tells us that if there is no advertising the sales will remain constant. Yeah, that's another way of looking at the regression equation. But I am asking कि ये regression equation कैसे बनाता है? Regression कैसे ये predict करता है? Okay, let me go through this. For example, आपके पास ये data है. मैम एक और पॉइंट जैसे स्लोप हम लोग डिफाइन करते हैं उसी स्लोप में अगर हमारी मतलब वही हुआ कि जितना डिफरेंस में अगर मूव कर रहा हो उसी डिफरेंस में नेक्स्ट टाइम मूव मतलब प्रेडिक्ट होगा कि इतना ही डिफरेंस नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है वही काइंड ऑफ एवरेज होगा the slope and everything will fall. Yeah, m is basically weight you are giving to your x variables. We'll see that. तो okay, so first step क्या होगा? For example, ये डेटा है मेरे पास पास्ट ईयर का जनवरी फरवरी मार्च इन सारे मंथ्स का मेरे पास सेल्स का डेटा है ओके और मेरे पास क्योंकि ये लास्ट ईयर का डेटा है इनका ही मेरा एडवर्टीजमेंट डॉलर्स का भी डेटा है ओके और मैंने क्या किया सबसे पहले इसका एक ही प्लॉट बना दिया स्कैटर प्लॉट काइंड ऑफ थिंग ठीक है बेसिकली सेल्स 100 है एडवर्टाइजिंग डॉलर 5.5 so 5.5 is my advertisement dollars my sale is this then this and this और ये ऐसे डेटा प्लॉट कर दिया इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है
यहाँ तक समझ में आया? क्लियर है सब कुछ? यस मैम, मैंने लास्ट ईयर का ये सब डेटा लिया और मुझे फॉर एग्जांपल जनवरी 2020 का एडवर्टाइजिंग डॉलर्स मेरे पास है कि 7.5 स्पेंड करूंगी और मुझे ये सेल्स का नंबर चाहिए, राइट? यही तो है। तो हम क्या करेंगे, ये पास के डेटा पे, इसके डेटा पे एक रिग्रेशन इक्वेशन बनाएंगे जैसे, या मॉडल बनाएंगे, और उस मॉडल में हम ये वाली वैल्यू रख देंगे एंड वी कैन कैलकुलेट दिस आवर सेल्स दिस पे। तो फर्स्ट थिंग आई डिड वाज कि इसको मैंने प्लॉट कर दिया, ठीक है। अब रिग्रेशन से प्रेडिक्ट कैसे करते हैं, तो ये स्कैटर प्लॉट क्या बताता है, बेसिकली क्या बता रहा है ये स्कैटर प्लॉट? कुछ समझ में आ रहा है इस स्कैटर प्लॉट से? शायद ये कोरिलेटेड है। वैल्यू अगर बढ़ रही है तो, अगर आपके एडवर्टीजमेंट की वैल्यू बढ़ रही है तो सेल्स की वैल्यू भी आपकी बढ़ रही है, isn't it? Yes, ma'am. कुछ ठीक है, और तो कुछ और पॉइंट्स भी हैं बट मोटा मोटा, ओके। तो व्हाट वी डू नेक्स्ट इज, इसमें एक रिग्रेशन लाइन फिट करते हैं। तो रिग्रेशन क्या करता है, जैसे ये वाला जो पिक्चर है, रिग्रेशन ट्राइज टू फिट अ लाइन। और लाइन कैसे फिट करनी है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये डेटा सेट है, रिग्रेशन कई बार रन करेगा, ये वाली लाइन फिट करे, ये वाली लाइन फिट करे, ये वाली लाइन फिट करे, कौन सी लाइन फिट करे? रिग्रेशन वो वाली लाइन फिट करेगा विच इज कॉल्ड बेस्ट फिट लाइन बाय अ मेथड कॉल्ड, कौन सा मेथड होता है, सो दैट ये डिस्टेंस सबसे कम हो। बेसिकली एक्चुअल जो पॉइंट्स है और रिग्रेशन जो प्रेडिक्ट कर रहा है वो पॉइंट्स, या इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो सबसे कम हो। व्हाट इज दैट कॉल्ड? नहीं याद? बेसिकली ये हमारे पॉइंट्स थे, रिग्रेशन ने एक ये लाइन प्लॉट करी, और लाइन ऐसे प्लॉट करना है सो दैट ये जो एरर है ये मिनिमम हो। बेस्ट फिट लाइन, लीस्ट स्क्वायर मेथड कुछ याद है? लीस्ट स्क्वायर मेथड, प्रोसीजर फाइंडिंग द बेस्ट फिट लाइन। यस मैम, यस मैम, कुछ याद है। बेस्ट फिट लाइन बेसिकली बस ये जो पिक्चर है ना, ये याद रखो कि कुछ डेटा है और रिग्रेशन कोई एक मॉडल फिट करता है, बेसिकली एक लीनियर लाइन इस डेटा में फिट करता है, और डेटा में फिट लाइन ऐसे करता है सो दैट जो हमारा, जब हम एक लाइन फिट करेंगे इस डेटा में, लाइक आई शोड यू दिस, अगर हम कोई लाइन इस डेटा में फिट कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है ना कि वो लाइन सारे डेटा पॉइंट से जाए। यस मैम। ओके, तो बेस्ट फिट लाइन कौन सी होगी? बेस्ट फिट लाइन वो होगी अगर हमारा जो ये डेटा पॉइंट से सबसे पास में जो फिट लाइन जाती है, बेसिकली जो हमारा एरर है, बेसिकली दिस एक्चुअल पॉइंट और रिग्रेशन लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज माय एरर, वो सबसे कम हो। इसे ही लीस्ट स्क्वायर मेथड कहते हैं, द बेस्ट फिट लाइन। ओके, तो प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग द बेस्ट फिट लाइन इज कॉल्ड लीस्ट स्क्वायर मेथड। और ये कैसे करते हैं? बाय टेकिंग द डिफरेंस बिटवीन ईच डेटा पॉइंट एंड द लाइन। जो भी डेटा पॉइंट है और लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो मिनिमम कौन सी लाइन से हो रहा है, दैट इज द बेस्ट फिट लाइन। ये समझ में आया? इतना समझ में आया? व्हाट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, व्हाट इज यस मैम। यस मैम। कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, रिग्रेशन बेस्ट फिट लाइन क्या होती है, रिग्रेशन में क्या लीनियर होता है, तो हम एक लाइन फिट करते हैं। और लाइन बेस्ट फिट लाइन कौन सी होती है कि ये एरर जो डिस्टेंस है वो सबसे कम हो। आप क्या बात है अभी? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस मैम। ठीक है, तो दिस इज लीस्ट स्क्वायर मेथड्स। नेक्स्ट आते हैं, अब हम फ्यूचर कैसे प्रेडिक्ट करते हैं? मैम एक बार थोड़ा सा लीस्ट स्क्वायर बता दो। ओके, तो हमने बोला कि हमारे पास ये डेटा था, ओके, हमें इसमें एक
रिग्रेशन लाइन फिट करनी है। तो रिग्रेशन क्या करता है, इसमें डिफरेंट लाइन फिट करता है कि जो इस डेटा पॉइंट से जाए, बट दिस इज नॉट पॉसिबल कि हर एक डेटा पॉइंट से एक लाइन जा रही है, then it will be like overfitting, सब पे ले जाके जो लाइन फिट करे, that's overfitting. We are not doing that. We want linear एक relationship हो, and we want to fit one line जो कि इन सारे पॉइंट से जा रही हो, मैक्सिमम पॉइंट्स को कवर कर दे, कुछ ऐसी लाइन। तो हम वो बेस्ट फिट लाइन ढूंढते हैं सो दैट कि हमारे इन पॉइंट से जो रिग्रेशन लाइन हमने बनाई है उसका जो स्क्वायर डिस्टेंस है पॉइंट से सबसे कम हो, दैट विल बी माय बेस्ट फिट लाइन। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स ऊपर होंगे, कुछ पॉइंट नीचे होंगे, बट वी टेक स्क्वायर डिस्टेंसेस, सो वो कैंसिल ना हो, बेसिकली वो एरर ही शो करे, चाहे वो पॉइंट रिग्रेशन लाइन के ऊपर है या नीचे है। ओके, यस मैम। तो स्क्वायर डिस्टेंसेस हम लेते हैं। So this is done and we got the best fit line. अब बेस्ट फिट लाइन तो आ गई हमारी, अब हम प्रेडिक्ट कैसे करेंगे, फ्यूचर वैल्यूज पे कैसे करेंगे। फ्यूचर वैल्यूज पे करने के लिए क्या करते हैं, इस लाइन को ही थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं, ये फ्यूचर प्रेडिक्शन, ये लाइन देखिए यहाँ पर। ओके, लाइक अप टू हियर 7 के पॉइंट पर अगर मुझे नेक्स्ट देखना है, फॉर एग्जाम्पल 7.5 मेरा क्वेश्चन था ना, अगर मैं 7.5 स्पेंड करूं तो उसको प्रेडिक्ट करने के लिए हम इसी लाइन को आगे बढ़ा दें, दैट विल टेल अस द फ्यूचर प्रेडिक्शन। ओके, नाउ सम ऑफ स्क्वायर रिग्रेशन, सम ऑफ स्क्वायर एरर, सम ऑफ स्क्वायर टोटल, ये कुछ याद है? व्हाट इज दिस? मैम नाम याद है, बस नाम ही याद है। आर स्क्वायर, यस मैम, आर स्क्वायर क्या होता है, व्हाट इज आर? तो किसी ने अभी, अच्छा ठीक है, आई फिनिश। आर स्क्वायर आई थिंक एक्सप्लेन पार्ट ऑफ द टोटल होता है। या एक्सप्लेन पार्ट ऑफ द टोटल। सॉरी मैम, इट रिप्रेजेंट्स द एक्सप्लेन पार्ट ऑफ द टोटल। एसपीएसएस में मैम यही पढ़ा था, इतना ही याद है। एक्सप्लेन्ड पार्ट ऑफ द टोटल, यस मैम। ओके मैम, वेरिएंस इन द डिपेंडेंट वेरिएबल। मैम प्रोपोर्शन, वी कैन से प्रोपोर्शन। मैम जो हमारा वेरिएबल है वो टोटल वैल्यू से, टोटल परसेंटेज से कितना वेरी कर रहा है, लाइक हाँ, टोटल वेरिएंस पॉइंट। मैम जैसे इसका एक फॉर्मूला भी था, एक्सप्लेन्ड वेरिएबल अपॉन टोटल वेरिएबल। हाँ, यही SST upon SSR। हाँ, पर ये SSR होता है या SST होता है, क्या होता है? और अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये बार बार भूल जाते हो, then just give me like 5-10 minutes to understand what is this। तो किसी ने, ठीक है, किसी ने बोला कि एवरेज निकाल सकते हैं। स्टार्टिंग में किसी ने बोला, फॉर एग्जाम्पल 2 सिनेरियो कंसीडर करते हैं, एंड ये SSR, SSE, SST क्या होता है, F टेस्ट क्या होता है, रिग्रेशन, ये R स्क्वायर क्या होता है, ये सब चीज क्लियर हो चुकी है। okay. तो 2 सिनेरियो कंसीडर करते हैं कि हम कहते हैं कि हम रिग्रेशन से नहीं चाहते, ओके और हमारे पास ये सारे मंथ की सेल्स का डेटा है, और हमें अगर जनवरी का सेल्स का डेटा निकालना है तो हम सीधे क्या करेंगे, इसका मीन निकाल लेते हैं, isn't it? किसी ने बोला था ना कि हम एवरेज कर देते हैं। यस मैम। एक ये सिनेरियो पकड़ के चलते हैं कि वी डोंट हैव एनी डेटा, बेसिकली हम रिग्रेशन नहीं कर रहे हैं। हम कहते हैं कि अगर सेल्स का डेटा है, फॉर एग्जांपल तुम में से कोई एक बोलता है कि मैम रिग्रेशन क्यों रन करें, हमारे पास सेल्स का डेटा है, सेल्स का ये एवरेज निकाल देते हैं, एंड वही हमारा प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, ये सेल्स का डेटा पूरे साल का ये है, और जनवरी का इसका मीन ही हमारा सेल्स हो जाएगा। ओके, दिस इज फर्स्ट सिनेरियो व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी रिग्रेशन। एंड सेकंड इज व्हेन वी आर डूइंग रिग्रेशन, वी आर सेइंग कि सेल्स को प्रेडिक्ट करने के लिए एडवर्टीजमेंट का डेटा भी ले लेते हैं, और फिर हम एक रिग्रेशन मॉडल करते हैं। ओके, तो बेसिकली दिस बहुत बिजी चार्ट लग रहा होगा ये, तो कोई, दिस इज जस्ट अ टेल ऑफ 2 लाइंस, 2 लाइंस हैं, एक ये वाली जिसमें हमने कोई रिग्रेशन नहीं रन किया है, नो रिग्रेशन,
बेसिकली हमें ये देखना है कि रिग्रेशन से कोई फायदा हो रहा है या नहीं, और हम इन दोनों लाइन को कंपेयर करते हैं, और इसी से हमारा SST, SSR, SSE ये सब चीज आ जाता है। ओके, तो हम कहते हैं कि हम सिर्फ सेल्स ले रहे हैं और मीन वैल्यू ले रहे हैं, बेसिकली सिनेरियो 1 जहां पर व्हेन वी हैव वन वेरिएबल रिग्रेशन रन नहीं कर रहे हैं, और सिनेरियो 2 जहां पर हम एडवर्टीजमेंट का भी डेटा ले लिया हमने, और फिर हम एक ही रिग्रेशन लाइन ले आते हैं। ओके, अब क्या करते हैं, हम इन दोनों को एक प्लॉट में डालते हैं। ओके, जहां पर हमारा ये वैल्यू भी है, मीन वैल्यू बेसिकली 112 मीन है सेल्स का, और एक जिसमें हमने ये रिग्रेशन ड्रॉ कर लिया, रिग्रेशन लाइन है। तो हमारा सम ऑफ स्क्वायर टोटल क्या होता है, इससे समझ में आ रहा है? इससे दिस इज यस मैम, हम दोनों को कंबाइन कर दिया। ट्रायंगल है शायद। नहीं, सम ऑफ स्क्वायर टोटल इज बेसिकली, फॉर एग्जांपल अगर इस लाइन में मैं शो करूं, यहाँ पर मेरा 112 है, इसे मैंने ऐसे किया, सम ऑफ स्क्वायर टोटल इज जो हमारा एक्चुअल वैल्यू थी। ओके, हमारी एक्चुअल वैल्यू, सम ऑफ स्क्वायर टोटल इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड मीन वैल्यू। तो हमारी जो एक्चुअल वैल्यू थी और इसकी मीन वैल्यू कहीं पर ये है। बेसिकली अगर हम मीन वाले से जाते, इस वाले कॉन्सेप्ट से जाते जहां पर हम सिर्फ मीन वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हम इस पॉइंट को यहाँ पर प्रेडिक्ट करते, हम 112 ही बोलते, चाहे ये एक्चुअल वैल्यू हमारी 120 के करीब है, पर क्योंकि हम मीन लेके चल रहे हो और हम एडवर्टीजमेंट नहीं लेके चल रहे, तो हम इसको यहाँ पर प्रेडिक्ट करते। ये समझ में आ रहा है? तो बेसिकली जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है और ये हमारा मीन वाली जो वैल्यू है, दैट इज SST, सम ऑफ स्क्वायर टोटल। ये जो डिफरेंस है बेसिकली दिस। मैम एक बार फिर से बता दीजिए। ओके, हमने कहा कि तुम में से किसी ने बोला कि मैम ये रिग्रेशन क्यों रन कर रहा है, हमारे पास सेल्स का डेटा है, हम सिर्फ सेल्स के डेटा से ही, हमारे पास 1 साल का सेल्स का डेटा है, हम उस सेल्स के डेटा से ही नेक्स्ट ईयर का प्रेडिक्ट कर लेते हैं, हम एवरेज निकाल लेते हैं सेल्स का, और हम वही बोल देते हैं कि 112 इसका एवरेज निकला कि जनवरी में 112 सेल्स हो जाएगी, हमने इसका पूरा एवरेज निकाल दिया और 112 सेल्स हो जाएगी। ये हमारा सिनेरियो 1 था कि 112 सेल्स है, ये हमने प्रेडिक्ट किया। तो में से कुछ लोगों ने बोला कि नहीं मैम ये वाला नहीं, सिनेरियो 2 से जाते हैं कि हम एडवर्टीजमेंट का डेटा भी ले लेते हैं और फिर हम रिग्रेशन लाइन ड्रॉ करते हैं उससे, y = mx + c। ओके, वो हमने ये कर दिया। अब हम कंपेयर कर रहे हैं कि क्या हम रिग्रेशन जब नहीं करें वो बेटर है, या फिर हम अगर रिग्रेशन कर रहे हैं वो बेटर है। So what we did is we superimposed both these charts, okay? और हमने sum of square total हमारा क्या है, for example अगर मैं इन दोनों को charts को superimpose कर देती हूँ, तो sum of square total is the distance between actual and the mean value. Basically mean value क्या है 112, पर हमारा actual value क्या था ये, तो this distance एक्चुअल वैल्यू क्या है हमारी और हमारी मीन वैल्यू क्या है, दैट इज सम ऑफ स्क्वायर टोटल। ये समझ में आया अभी? यस मैम। सम ऑफ स्क्वायर टोटल, ओके, सम ऑफ स्क्वायर टोटल इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड मीन वैल्यू। ओके, अब इसमें एक और चीज आती है, जैसे सम ऑफ स्क्वायर एरर इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड प्रेडिक्टेड वैल्यूज। अब आपने कहा कि हमने रिग्रेशन रन किया और आपका पॉइंट कुछ यहाँ पर आएगा, तो सम ऑफ स्क्वायर एरर इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्चुअल एंड प्रेडिक्टेड रिग्रेशन। बेसिकली ये जो इतना डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, समझ में आ रहा है ये? यस मैम। बेसिकली ये जो एरर है कि आपका एक्चुअल वैल्यू यहाँ पर थी और पर आपके रिग्रेशन वाली जो लाइन है, क्योंकि वो सारे डेटा पॉइंट से जा नहीं सकती, तो दिस इज द सम ऑफ स्क्वायर एरर, एक्चुअल और जो आपके रिग्रेशन पे ये परपेंडिकुलर आप डालोगे। मैम ये एरर वाला बता दीजिए। ओके, दिस इज सम ऑफ स्क्वायर एरर। सम ऑफ स्क्वायर एरर कौन सा डिस्टेंस हुआ, जो आपका एक्चुअल पॉइंट था और आपके जो रिग्रेशन वाली लाइन है प्रेडिक्ट की, ये जो डिस्टेंस है दैट इज सम ऑफ स्क्वायर एरर। मैम ये 116 और 120 वाला जो डिस्टेंस आ रहा है बीच का,
that is SSE. हाँ बेसिकली ये 120 के आसपास है, यस ये वाला, और ये जो है 116 एग्जैक्टली। एक्चुअल डेटा पॉइंट था 120 पे, और रिग्रेशन लाइन क्योंकि सारे डेटा पॉइंट से नहीं जा सकती, उसने सम ऑफ स्क्वायर एरर्स को मिनिमाइज करके ये वाली बेस्ट फिट लाइन निकाली, पर सारे पॉइंट से तो वो जा नहीं सकती, बट देयर इज दिस एरर, तो ये जो है दैट इज सम ऑफ स्क्वायर एरर। ओके, सम ऑफ स्क्वायर एरर इज दिस, सम ऑफ स्क्वायर टोटल इज एक्चुअल पॉइंट से जो हमारे मीन वाली वैल्यू पे जो पॉइंट आया, बेसिकली 112 पे 120 एक्चुअल वैल्यू थी और हमारे मीन ने क्या बताया 112। ओके, अब इसमें एक और वैल्यू आती है, SST हो गया हमारा, SST हो गया, एंड SSR। व्हाट इज SSR? This is sum of square differences between our predicted values to regression and the mean value. Basically, ये अगर 116 मेरी predicted value है और 116, 112 और 116 का बीच का जो है, that is my sum of square regression. समझ में आया अब ये तीनों चीजें? Yes ma'am. Yes ma'am. अच्छा, तो फिर एक चीज बताओ, मैम ये SSR बता दो एक बार। SSR बता दो हमें जो अभी बताया। ओके, बेसिकली तीन डिस्टेंसेस चेक कर सकते हैं हम इसमें, ठीक है, टोटल 3 डिस्टेंसेस। पहला डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल मैं इसे सुपर इम्पोज कर देती हूँ यहाँ पर। पहला डिस्टेंस कौन सा, कि मेरा एक्चुअल पॉइंट कहाँ पर था और मेरे मीन वाले पॉइंट से क्या डिस्टेंस है, दिस इज टोटल सम ऑफ स्क्वायर। सेकेंड, हम कह सकते हैं कि मेरा एक्चुअल पॉइंट कहाँ पर था और मेरी रिग्रेशन लाइन ने क्या बताया, दैट इज सम ऑफ स्क्वायर एरर। और थर्ड पॉइंट क्या बता सकते हैं कि हमारा रिग्रेशन वाला पॉइंट क्या था और हमारा मीन वाला पॉइंट क्या है, दैट इज SSR। ठीक है, यस मैम। SST इक्वल्स टू Yes, SSR प्लस SSE। मैम हाँ मैम, जो भी पॉइंट्स जो फर्स्ट वाले ग्राफ के हैं वो सब मीन वैल्यूज हो जाएंगी। जो भी वैल्यूज ये रिग्रेशन सिनेरियो 2 की लाइन पे आ रहे हैं वो सब हमारे रिग्रेशन वैल्यूज हो जाएंगी, और जो भी उससे दूर है वो प्रेडिक्टेड हो जाएंगी। नहीं, जो रिग्रेशन लाइन है दैट इज आवर प्रेडिक्टेड लाइन। अच्छा, वो प्रेडिक्टेड है, एंड जो उसके बाहर है वो एक्चुअल वैल्यू, वो एक्चुअल वैल्यूज पे हमने रिग्रेशन लाइन पॉइंट ये करा है ना, एक्चुअल मीन एंड प्रेडिक्टेड वैल्यूज। यस, ओके, तो इसी का ही प्ले है। अब अगर मैं बोलती हूँ कि हमारा सम ऑफ स्क्वायर एरर अगर ज्यादा होता है तो बेटर है या कम होता है तो बेटर है? कम होगा। कम होगा तो बेटर होगा ना, क्योंकि प्रेडिक्टेड वैल्यूज बाय रिग्रेशन आर क्लोज, है ना? यस मैम। क्योंकि सम ऑफ स्क्वायर एरर हमारा क्या था, इज द सम ऑफ स्क्वायर डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड प्रेडिक्टेड वैल्यूज। ये एक्चुअल और प्रेडिक्टेड वैल्यूज, बेसिकली ये जो एरर एक्चुअल और प्रेडिक्टेड वैल्यूज, अगर इनका डिस्टेंस कम होगा यानी हमारी रिग्रेशन लाइन उससे और ज्यादा पास है, तो अगर सम ऑफ स्क्वायर एरर हमारा लो होगा तो देन इट्स बेटर। और अगर मैं पूछूं व्हाट इज सम ऑफ स्क्वायर रिग्रेशन, अगर ये ज्यादा होगा तो बेटर होगा या कम होगा तो बेटर होगा? सम ऑफ स्क्वायर रिग्रेशन ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। इट विल बी ग्रेटर। यस, ज्यादा होना चाहिए तो बेटर होगा, क्योंकि हमारा हाई होगा ये, तो सम ऑफ स्क्वायर रिग्रेशन इज सम ऑफ स्क्वायर डिफरेंस बिटवीन आवर प्रेडिक्टेड वैल्यूज टू रिग्रेशन एंड द मीन वैल्यूज। तो इसका मतलब क्या होगा, it will be more closer to our predicted value। Exactly. नहीं, sorry, regression, हाँ, yes, regression line। हाँ, रिग्रेशन हमारा प्रेडिक्टेड वैल्यूज से ज्यादा क्लोजर है। ओके, सो बस इसी का ही इंटरप्ले होता है कि अगर हम कहें कि व्हाट इज आर स्क्वायर, what is r square, so r square is nothing but this is the difference between, this is SSR, sum of square regression by sum of square total। ठीक है, हमारी predicted values regression और mean values
डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्क्वायर टोटल। तो अगर ये आर स्क्वायर वैल्यू ज्यादा है तो ऑब्वियसली हमारा जो रिग्रेशन है वो बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट कर रहा है, isn't it? Yes. Yes. Predicted values to regression and the mean value. बेसिकली अगर हम नहीं करते थे प्रेडिक्ट तो हमारी मीन वैल्यू यहाँ पर थी, पर अगर हमारा सम ऑफ स्क्वायर दैट इज डिफरेंस बिटवीन प्रेडिक्टिव वैल्यू एंड द मीन वैल्यू. Ma'am, if possible, can you share the recording of this class on LMS? Yeah, I'll do that. I'll do that. Okay, ma'am. ठीक है. मैम लाइक आपने अभी कहा कि अगर हम लोग ये मीन वैल्यू प्रोजेक्ट नहीं करते तो मैम क्या होता अगर दिस मैम मीन एवरेज हम लोग अगर प्रोजेक्ट नहीं करते? एवरेज हमने प्रेडिक्ट करा ही नहीं. प्रेडिक्ट कहाँ किया? एवरेज तो हमने कैलकुलेट कर दिया. हम कैलकुलेट किया है हम लोगों ने. ओके, सो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि हम एक सिनेरियो हमने लिया कि हम रिग्रेशन नहीं लेते. ओके. एक्चुअली ये इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए कि रिग्रेशन से कोई फायदा है या नहीं, हम कैसे चेक करेंगे? उस सिनेरियो से कंपेयर करके कि जब हम रिग्रेशन यूज ना कर रहे हैं. दो चीजों को तुम कैसे कंपेयर करोगे कि वो बेटर हुआ या नहीं हुआ? एक केस वो लोगे जब वो चीज हम यूज नहीं कर रहे हैं, एक केस वो लोगे जब हम वो यूज कर रहे हैं. फर्स्ट केस में हमने रिग्रेशन नहीं यूज किया, सेकेंड केस में हमने रिग्रेशन यूज किया, और हम ये देख रहे हैं कि हमारी एक्चुअल वैल्यूज और प्रेडिक्टेड रिग्रेशन वैल्यूज वो ज्यादा पास है, या मीन वैल्यूज अगर हम रिग्रेशन नहीं लेते वो वैल्यूज ज्यादा पास है, एंड देन वी आर अराइविंग कि हमारा रिग्रेशन बेटर है या फिर अगर हम रिग्रेशन ना करते तो बेटर होता. ओके. So class, so I think you are like quite comfortable now. You understand this concept. SSR. Yes, मैम अगर SSC कम होगा तो मैम बेटर होगा, अगर SSR में ज्यादा हो तो ये मतलब है कि मीन वो अनस्टेबल है, मीन जो हमने निकाला वो एक्यूरेट नहीं है. हाँ, मतलब मीन वैल्यू और हमारा जो प्रेडिक्टेड वैल्यूज है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है. तो हम उसको फिर कंसीडर नहीं करेंगे ना मीन वैल्यू को फिर? हाँ, मीन वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे. हम बोलेंगे हमारा रिग्रेशन बेटर है, तो मीन से मत जाओ, एक्चुअली रिग्रेशन मॉडल रन करो. दिस इज अनदर वे ऑफ सेइंग इट. Ma'am, what could be the case for adjusted R square? Yes, ma'am. Yeah, what is adjusted R square? So we don't have time today, but I'll tell you कि adjusted R square क्या होता है, and you know. मैम वो उसमें होता है शायद जब एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं तब हम लोग एडजस्टेड वाला लेते हैं. तो लेकिन वो अनवाइज ज्यादा होता है, सो यूजुअली हम उसी को प्रेफर करते हैं. So there is one very interesting case study, section H road trip. ठीक है, at the time of corona हम जा नहीं सकते हैं, but we'll assume about this hypothetical road trip and we'll check all the scenarios कि multiple regression करते हैं, regression करते हैं, क्या difference होता है multiple R square का, adjusted R square का, सारे scenarios में कौन सी values ले, and you all are like part of this road trip. Okay. So we will do this very exciting case study on Wednesday. So yes, we'll discuss everything adjusted or that R square and adjusted R square multiple regression में क्या use करते हैं, significant model significant है या नहीं वो कैसे check करते हैं, model significant हुआ तो कौन सी variable सबसे ज़्यादा important है, उनका significance क्या है, we'll check that, we'll do all that. So, but are you able to understand up till now जो आज discuss हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. yes, ma'am. Great. Just I'll continue this discussion on WhatsApp group or on Facebook. Ma'am, can you upload the recording of today's class on the portal? Yes, I'll do. I'll do that. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, stay blessed, stay happy. Bye-bye. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.